Today we want to touch on this topic, metal semiconductor junction, Ohmic and Schottky. So there are two types of metal semiconductor junction. We will try to go into the detail as much we can and try to understand how this metal semiconductor junction plays a role. Because generally when we are running PN junction, we saw that battery is connected, dicing we do, but we don't look at this, what happened at that junction when a metal connects with a semiconductor. So we will be trying to investigate that part today and see what is ohmic and what is Schottky, why we call it ohmic and Schottky. Ohmic, you can get an idea कि ohmic is like Ohm's law you are familiar with. तो कुछ ऐसे जंक्शंस है जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, या ओम्स लॉ फॉलो करना मतलब ये है कि जब वोल्टेज और करंट का रिलेशन लीनियर होता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है एक रेजिस्टेंस का, तो हम उसको वो कहेंगे हम ओम्स लॉ फॉलो कर रहे हैं. अदरवाइज जैसे सेमीकंडक्टर का हमने पीएन जंक्शन का जब वीआई कैरेक्टरिस्टिक देखा तो उसने देखा कि ऐसे नहीं हो रहा है कि डजंट फॉलो डायरेक्टली ओम्स लॉ. एक साइड में अलग रिस्पॉन्स है एंड व्हेन यू चेंज द डायरेक्शन देयर इज अ डिफरेंट रिस्पॉन्स. So we will be looking forward to this, all this part. Okay. So let us quickly, this was PN junction. So you see, when we were talking about dicing, we don't talk about what happened at this junction, what happened at this junction. So that part we will be addressing today. And this is characteristic. So you see, this is one side, this is some other response, other side there is different response. So this is not an ohmic response. Ohmic response means V is equal to IR. Voltage and current should be a linear relation, but it is not. So today we will be talking about metal semiconductor junction. So first, let's quickly review what we know about metals and semiconductors. So you see, we are very much familiar with this diagram. For semiconductor, what happened? This is valence band, this is conduction band, and there is a energy gap that we call it band gap. And for intrinsic semiconductor, the Fermi level lies in the middle of that. And for p-type semiconductor, the Fermi level goes to valence band. And for n-type semiconductor, Fermi level goes to conduction band. This we know about semiconductors. And then what happens in metal? In metals, these bands overlap. Conduction band or valence band के बीच में कोई gap नहीं है. They are overlapped, and somewhere in between there lies Fermi level. So in case of metal we have this case of Fermi level. So now let's see what are the properties. Metals are good electrical conductors. Semiconductors are intermediate conductors. मतलब metal की इतना conductivity इनका नहीं होता है, but insulator से better होता है, so it is in between. And in metals there are a lot of free electrons. Conduction band, valence band is overlapped, and Fermi level is center of conduction band and valence. This is in case of metals. What happens in case of semiconductors? In semiconductors, the band gap, we know it is narrow. Why it is narrow? Because you see, if it is very large band gap, then it will be insulator, and you can't give energy, so electron reach from valence band to conduction band. But in semiconductor, it is possible. The band gap is narrow. So either electrons or holes are majority charge carriers. Fermi level can be shifted. Here, Fermi level can be moved. Doping, हम लोग doping करते हैं, temperature change करते हैं, तभी भी Fermi level shift होता है. Fermi level is dependent here on temperature, carrier concentration, doping, and all many factors. So this is what we know. हम लोग यहाँ पे कुछ नया नहीं, हम लोगों ने इसको quickly summarize किया. Now let us read the text and to understand what happens when we connect a metal and semiconductor. So let me read it for you.
Whenever a metal and a semiconductor are in intimate contact, there exists a potential barrier between two that prevents most charge carriers from passing from one to other. जैसे कि सेमीकंडक्टर में हम लोगों ने देखा, जब एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर हम लोगों ने एक साथ रखा, तो देखा कि बीच में एक पोटेंशियल बैरियर बन जाता है जिसको हम लोग डिप्लीशन रीजन कहते हैं। और डिप्लीशन रीजन एक टाइम के बाद में जो चार्ज कैरियर्स की क्रॉसिंग है उसको रोकने लगता है। ठीक है, तो ऐसे ही जब मेटल और सेमीकंडक्टर कांटेक्ट में आते हैं तो बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर यहाँ भी एग्जिस्ट हो जाता है जो चार्ज कैरियर्स की क्रॉसिंग को रोकता है। लेट्स गो फर्दर। Only a small number of carriers have enough energy to get over the barrier and cross to other material. When a bias is applied, bias मतलब जो हम बैटरी लगाते हैं, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, जैसे हम लोगों ने पीएन जंक्शन में सीखा था, ऐसे ही when a bias is applied to the junction, it can have one of two effects. It can make barrier appear lower from semiconductor side, or it can make it appear higher. जैसे हम लोग देखे कि रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस दो पीएन जंक्शन में कर रहे थे, तो एक में डिप्लीशन रीजन जो है थिन हो जा रहा था फॉरवर्ड बायस में, उसका रेजिस्टेंस कम हो जा रहा था, और रिवर्स बायस में वो बढ़ जा रहा था, उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जा रहा था। ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं कि एक पोटेंशियल बैरियर जनरेट हो जाता है, और वो पोटेंशियल बैरियर को अगर हम कुछ बैटरी लगाए, मतलब उसका कुछ बायसिंग करें, तो उसका दो इफेक्ट हो सकता है। एक हो सकता है कि वो जो बैरियर है उसको कम कर दे, एक हो सकता है उस बैरियर को और बड़ा कर दे। तो फिर क्या कह रहे हैं, बट all this happens inside of semiconductor, not in metal. Metal में ऐसा नहीं होता है। The bias does not change the barrier height from the metal side. मेटल के साइड से हम कुछ बैटरी से नहीं कर सकते। मेटल तो हम जानते हैं कि वो दोनों साइड से, दोनों बायसिंग में सेम ही रिस्पॉन्स करता है। मेटल हैज अ लॉट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल एंड इट डजंट हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो फिर बोल रहे हैं कि द रिजल्ट ऑफ दिस इज अ शॉटकी बैरियर। शॉटकी बैरियर, रेक्टिफाइंग कॉन्टैक्ट। एक हो गया ओमिक कॉन्टैक्ट। ओमिक कॉन्टैक्ट मतलब चाहे इधर से बैटरी दो चाहे उधर से बैटरी दो, दोनों का रिस्पॉन्स, दोनों का बहुत कुछ अंतर नहीं है, और इट फॉलोज ओम्स लॉ, वोल्टेज एंड करंट इज प्रोपोर्शनल, देन इट इज कॉल्ड ओमिक कॉन्टैक्ट। और शॉटकी बैरियर और रेक्टिफाइंग कॉन्टैक्ट, जैसे मैंने एक बार बोला था कि पीएन जंक्शन कैन एक्ट एज अ रेक्टिफायर। रेक्टिफायर मतलब ये होता है कि एक साइड से कुछ जाने दे रहा है और दूसरी साइड से नहीं जाने दे रहा है। तो कभी कभी एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हमको जो डिवाइस चाहिए होती है उसको रेक्टिफायर बोलते हैं। एसी में क्या है, एसी का साइन वेव होता है, और डीसी स्ट्रेट लाइन काइंड ऑफ, जब हम उसको देखेंगे वो चेंज नहीं करता है। तो इसी तरह से बोले कि जब ऐसा करते हैं तो एक शॉटकी बैरियर बनता है जिसको हम लोग रेक्टिफाइंग कॉन्टैक्ट कहते हैं। शॉटकी बैरियर इज सेम एज रेक्टिफाइंग कॉन्टैक्ट। व्हेन द जंक्शन कंडक्ट फॉर वन बायस पोलरिटी बट नॉट द अदर, मतलब जब एक साइड से हम जाते हैं या एक बायसिंग करते हैं तो वी सी देयर इज चेंज इन करंट, या उसका जो बैरियर है वो कम हो गया, और दूसरे साइड से जब करते हैं, जब पोलरिटी चेंज करते हैं उसका, तो देखते हैं कि वो बढ़ गया, तो देयर इज नो करंट। In one bias there is current, another bias there is no current. This is rectifying behavior, and that kind of junction is called, this barrier is called Schottky barrier, and this is rectifying contact. Almost all metal semiconductor junction will exhibit some of this rectifying behavior. जितने भी कॉन्टेक्ट बनाए जाएंगे वो सारे कॉन्टेक्ट में ये बिहेवियर दिखेगा। जैसे ही हम एक जंक्शन बनाएंगे, देयर विल बी ए पोटेंशियल बैरियर, एंड दैट पोटेंशियल बैरियर कैन बी ओवरकम विद प्रॉपर बायसिंग। एक बायसिंग करेंगे तो बैरियर का हाइट बढ़ेगा, और दूसरा बायसिंग करेंगे तो बैरियर का
हाइट घटेगा। तो इसी को हम लोग शॉर्टकी बैरियर बोलते हैं एंड दिस कॉन्टेक्ट इज कॉल्ड रेक्टिफाइंग कॉन्टेक्ट। ओके, तो देन शॉर्टकी कॉन्टेक्ट मेक गुड डायोड्स, मतलब जैसे हम लोग पीएन जंक्शन का डायोड बना रहे थे, ऐसे ही मेटल सेमीकंडक्टर से भी हम एक उसी तरह का बिहेवियर देख रहे हैं। एंड कैन इवन बी यूज्ड टू मेक काइंड ऑफ रजिस्टर्स, transistors. But for getting signals into and out of semiconductor device, we generally want a contact that is ohmic. ठीक है, अभी ये कह रहे हैं कि जनरली क्या होता है, मेटल सेमीकंडक्टर में भी हम एक डायोड जैसी स्थिति देख पा रहे हैं। बट हमको चाहिए क्या होता है, जैसे हम लोगों ने जब मेटल सेमीकंडक्टर, जब पीएन जंक्शन पढ़ा था, तो हम जब बायसिंग दे रहे थे, तो एट दैट टाइम वी वर नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग हैपनिंग एट सेमीकंडक्टर एंड मेटल। जो सेमीकंडक्टर मेटल कॉन्टेक्ट था उसको तो हम लोग ऐसे ही कॉन्टेक्ट मान ले रहे थे। तो बेसिकली हम लोग चाहते ऐसे ही है कि जब हम एक सेमीकंडक्टर में बायसिंग करें या उसमें कुछ मेटल कनेक्ट करें तो ओमिक बिहेवियर दिखाए। मतलब ऐसा ना हो कि वो कनेक्शन की वजह से भी एक नया बैरियर जनरेट हो जा रहा है, तो वो बैरियर जनरली हम लोग नहीं चाहते। This behavior is there. So how we can overcome that? How we can make it as ohmic? तो एक तो समझ में आ गया कि शॉर्टकी क्या है। शॉर्टकी ये है कि वो एक रेक्टिफाइंग बिहेवियर दिखा रहा है। मतलब एक साइड में बायसिंग की इफेक्ट, एक साइड बायसिंग करते हैं तो फ्लोज करंट प्रॉपरली, चार्ज कैरियर्स का मूवमेंट बहुत आसानी से होता है। दूसरा बायसिंग होता है उसमें वो नहीं होता है। And it all happens because of properties of semiconductor. Metal side में कुछ नहीं हो रहा है. Metal side is okay, but this contact is called Schottky barrier or rectifying contact. लेकिन हम लोग चाहते हैं कि ohmic contact बने. So we generally want a contact that is ohmic. Ohmic मतलब ohmic contact, the ohmic contact conduct current कंडक्ट द सेम फॉर बोथ पोलैरिटीज। मतलब इधर साइड पर लगाएंगे तभी कंडक्टिविटी सेम है उसका, उधर साइड से लगाएंगे मतलब इफ वी चेंज बायसिंग, जो एक्सटर्नल बैटरी लगा रहे हैं उसका पोलैरिटी हम चेंज करें तो ओमिक कॉन्टेक्ट डजंट डिस्टिंग्विश एंड वी वांट लाइक दैट, दे ओबे ओम्स लॉ। तो अब ऐसा करें कैसे? ऐसे तो बोला कि ये शॉर्टकी बैरियर जनरेट हो जाता है, ऑलमोस्ट ऑल मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन में ये चीज दिखती है। और हम चाहते हैं ओमिक, तो ओमिक अगर हमको बनाना है तो क्या करें? तो देयर आर टू वेज टू मेक ए मेटल सेमीकंडक्टर ऑफ कॉन्टेक्ट लुक ओमिक एनफ टू गेट सिग्नल्स इनटू एंड आउट ऑफ अ सेमीकंडक्टर और डूइंग द अपोजिट मेक्स ए गुड शॉर्टकी कंडक्टर। मतलब अगर हमको कोई शॉर्टकी का, अभी हम लोगों ने पहले क्या समझा कि ओमिक और शॉर्टकी दो तरह के कॉन्टेक्ट होते क्या हैं, ये हम लोगों ने समझ लिया। अब हम ये कह रहे हैं कि शॉर्टकी कॉन्टेक्ट तो ये जो है ये हमेशा रहता ही है और हम ओमिक चाहते हैं, तो शॉर्टकी से ओमिक कैसे बनाएं और ओमिक से शॉर्टकी कैसे बनाएं, ये मेथड हम लोग ये इसकी बात कर रहे हैं। तो देयर आर टू वेज, इट सेज देयर आर टू वेज टू मेक ए मेटल सेमीकंडक्टर कॉन्टेक्ट लुक ओमिक एनफ टू गेट सिग्नल इनटू। ओमिक मतलब इतना ओमिक हो जाए कि जब हम सिग्नल दे रहे हैं तो ऐसा नहीं कि वो सिग्नल को ही रोक दिया, दूसरा साइड में बाइसिंग किए, रिवर्स बाइसिंग किए, तो सेमीकंडक्टर के अंदर जो हो रहा था वो तो हो ही रहा था, मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन की वजह से हमको सिग्नल नहीं मिल रहा है। तो ऐसा सिचुएशन ना हो इसलिए हम ओमिक चाहते हैं। तो ओमिक अगर हमको बनाना है तो दो तरीके हैं, क्या करें? एक तो ये जो लोअर द बैरियर हाइट, जो ये बैरियर पोटेंशियल बैरियर जनरेट हो रहा है, इसकी हाइट हम अगर कम कर दें, मतलब इसका जो बैरियर है इसको अगर हम हाइट इसकी कम कर देंगे तो जो चार्ज कैरियर्स का मूवमेंट है वो आसान हो जाएगा एंड देन इट विल बी हैव एज एन ओमिक कॉन्टेक्ट। हाउ वी कैन डू दैट? द बैरियर हाइट इज प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल वी यूज। बैरियर हाइट कितना होगा, ये कौन सा मेटल हम कौन सा सेमीकंडक्टर यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। वी ट्राई टू यूज मटेरियल हुज बैरियर हाइट इज स्मॉल, तो हम ऐसे मटेरियल सेलेक्ट करें जिनकी बैरियर हाइट कम हो। Annealing can create an alloy between semiconductor and metal at the junction, which can also lower the barrier height. तो ये एक कुछ प्रोसेस है, we are not going to that detail। हम ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसा alloy मतलब होता है मिक्स धातु,
कुछ मटेरियल मिक्स होता है, तो अगर हम वहां पे एक कोई एलॉय लगा दें rather than metal, so that can lower the barrier height. ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से रिजल्ट है। तो ये एक तरीका बताया कि हमको अगर शॉर्टकी से ओमिक बनाना है तो हम बैरियर हाइट कम करें। बैरियर हाइट के लिए हम ऐसे मटेरियल यूज करें जिनका बैरियर हाइट कम होता है। इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। सेकेंड थिंग, दूसरा तरीका क्या है, मेक द बैरियर वेरी नैरो। बैरियर अगर बहुत नैरो हो जाएगा तभी भी वो चार्ज कैरियर्स उसको क्रॉस कर पाएंगे। हाउ वी कैन डू दैट? One very interesting property of very teeny particles like electrons and holes, they can tunnel. Tunneling phenomena एक होता है, तुम लोगों ने शायद अभी ना सुना हो। क्या होता है कि अगर बहुत कुछ छोट बैरियर का विड्थ बहुत कम है तो जो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स चार्ज कैरियर्स कैन गो थ्रू दैट, उसको पार कर जाएंगे। टनल जैसे बना लेंगे, जैसे हम लोग ऐसे समझे कि कहीं पे कुछ है और एक छोटा सा टनल बना के उससे बाहर आ जा रहे हैं। So this is quantum mechanical phenomena, so we can't say like that, but tunneling like phenomena where these particles can, which particles or we say charge carriers, they can cross the junction if it is very potential barrier, if it is very narrow. अगर उनका उतना एनर्जी नहीं भी होगा तभी भी क्रॉस कर पाते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ इट इज वेरी नैरो। So it says that electrons and holes, they can tunnel through barriers that they don't have energy to just pass over. मतलब उसको हाइट उसका कम होगा तब तो उसको पार कर लेंगे और उनके पास एनफ एनर्जी है। अगर हाइट कम नहीं है और नैरो है तभी भी वो उसको पार कर पाएंगे। The probability of tunneling becomes high for extremely thin barriers. जितना थिन होंगे उतना ही टनलिंग का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा। तो वी मेक द बैरियर वेरी नैरो बाय डोपिंग इट वेरी हैवीली। अगर हैवी डोपिंग करते हैं तो बैरियर नैरो हो सकता है। तो दो तरीके बताए। अगर हमको शॉर्टकी से ओमिक बनाना है तो क्या करेंगे, एक तो हम ऐसे मटेरियल यूज करेंगे जिनका बैरियर हाइट कम होता है, और दूसरा ये कि हम डोपिंग ज्यादा करेंगे जिससे कि जो बैरियर है वो थिन हो जाए। ठीक है। और अगर हमको शॉर्टकी से ओमिक से शॉर्टकी बनाना हो तो हम इसका उल्टा करेंगे, बैरियर को थिक करेंगे, डोपिंग मतलब डोपिंग कम करेंगे, बैरियर हाइट को बढ़ाएंगे मतलब ऐसे मटेरियल यूज करेंगे इनकी बैरियर हाइट ज्यादा होती है। तो इस स्लाइड से हम लोगों ने एक जनरल ओवरव्यू ले लिया कि ओमिक शॉर्टकी बैरियर या जो बैरियर है ये ओमिक और शॉर्टकी कॉन्टेक्ट क्या होते हैं और इनको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, इनका डिफरेंस क्या है, क्या यूज कर सकते हैं। तो दिस इज लाइक एन क्रक्स, जो हम लोगों ने कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हमको इस टॉपिक में चाहिए, उसके लिए एक क्रक्स है कि पीएन जंक्शन हम लोगों ने समझा था और उसी को आगे जो है यहाँ पे हम उसको यूज कर पा रहे हैं। कई सारी जो पोटेंशियल बैरियर और कई सारे कॉन्सेप्ट वहां पे हमने सीखे थे, वी आर एबल टू विजुअलाइज थिंग्स हियर। ओके, सो लेट्स गो फर्दर। तो ये जैसे एक सेमीकंडक्टर है, यहाँ पे हम इसको बैटरी से जोड़ते हैं, तो ये जो कॉन्टेक्ट हैं तो हम लोग अभी तक ऐसे ही जोड़ दे रहे थे। वी यूज्ड टू से दैट यहाँ पे हमने कुछ ज्यादा सोच नहीं रहे थे। अभी हम इस पे बात कर रहे हैं कि दीज कॉन्टेक्ट, जहाँ पे हम ये मेटल का वायर सेमीकंडक्टर से जोड़ते हैं, यहाँ पे क्या होता है, इस जंक्शन की बात कर रहे हैं। तो एक तो क्या है, एज मेटल कॉन्टेक्ट कंडक्ट एक्सटर्नल सर्किटरी विद डिवाइस, इससे हम लोग बच नहीं सकते, करना ही पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पे हमको सेमीकंडक्टर डिवाइस रखेंगे और वहां पे हमें ये कनेक्शन आएगा ही आएगा। और इसका इफेक्ट क्या होता है कि जब हम जो भी मटेरियल जो ये कांटेक्ट है, इससे क्या हो सकता है कि
डिवाइस के बिहेवियर पे इफेक्ट पड़ सकता है अगर हम इसको नोटिस ना करें, अगर हम इस पर ध्यान ना दें, तो हम इसकी प्रॉपर्टीज को एड्रेस कर रहे होंगे, बट देयर आर थिंग्स व्हिच विल बी अफेक्टिंग हियर एंड हमारे ऑब्जर्वेशंस जो होंगे वो थोड़ा सा इनकरेक्ट हो जाएंगे। इसलिए हमको इस कॉन्टेक्ट के बारे में भी बेहतर जानकारी, बेहतर समझ होना जरूरी है। ठीक है, तो लेट्स गो फर्दर। अब यहाँ पे समझा रहे हैं जैसे जैसे क्या होता है मेटल में। हम लोगों ने देखा मेटल में नीचे से एनर्जी लेवल भरे हैं, देयर इज अ फर्मी लेवल। 0 केल्विन टेम्परेचर पे क्या होगा कि इसके ऊपर के स्टेट्स खाली होंगे, और टेम्परेचर जब बढ़ा देंगे तो कुछ स्टेट्स, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर भी कुछ स्टेट्स को ऑक्युपाई करेंगे। बट सेमीकंडक्टर में क्या होता है, एक वैलेंस बैंड है, एक कंडक्शन बैंड है, और यहाँ पे जैसे एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल कहीं यहाँ पे लाई करते हैं। अब हम यहाँ पे इसका कॉन्टेक्ट बनाने वाले हैं, तो इसका फर्मी लेवल यहाँ पे है, इसका फर्मी लेवल यहाँ पे है। और होता क्या है, पहले कुछ कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ लेते हैं, कुछ चीजें डिफाइन कर रहे हैं। फाई एम वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। तो फाई एम इज, यहाँ पे ये डिस्टेंस बोल रहे हैं, यहाँ पे फाई एम है, ये एनर्जी इस एक्सिस पे है, तो ये बोले दिस इज फाई एम। तो वर्क फंक्शन होता क्या है मेटल का, जैसे तुम लोगों ने जब 12th में फोटो इलेक्ट्रॉन इफेक्ट पढ़ा होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो बोला था वहां पे वर्क फंक्शन डिफाइन किया। वर्क फंक्शन मतलब कुछ इतना एनर्जी दे दे इलेक्ट्रॉन को कि इलेक्ट्रॉन मेटल से छोड़ के ही चला जाए, इतना एनर्जी मिल गया कि वो मेटल से बाहर चला गया, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो एनर्जी, जब हम उसमें कुछ एनर्जी देते थे तो एक इक्वेशन आती थी, इफ यू रिमेम्बर, थोड़ा थोड़ा तो याद आ ही रहा होगा, कि कुछ एनर्जी जो हम इलेक्ट्रॉन को देते हैं फोटॉन के थ्रू, कुछ एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन अपने आप को फ्री करने में यूज करता है, फिर जब बाहर आता है तो जो एनर्जी बचती है उससे उसकी वेलोसिटी दिखती है। वर्क फंक्शन इज द रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन टू गेट फ्री आउट ऑफ मेटल। तो ये हमने बोला फाई एम इज द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल एंड फाई एस इज द वर्क फंक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में ये फाई एस है और मेटल में ये फाई एम है। ये हम नोटिस ऐसे हम लोग एक नोटेशन बना रहे हैं, तो इसे दिस इज फाई एम और ये फाई एस। अब फाई एस मतलब फर्मी लेवल होता है जनरली, यहाँ से इसकी डिस्टेंस को चार्ज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, so it gives energy। और ये यहाँ पे ऐसे बोल रहे हैं फाई एम इज ग्रेटर देन फाई एस। फाई एम मतलब इतना एनर्जी, और ये इसका फर्मी लेवल यहाँ पे है, तो इसका ये दिस इज फाई एस, तो दिस इज, ये जो है ये ज्यादा है और ये कम है और एन टाइप सेमीकंडक्टर। और क्यू फाई करके, क्यू ये जो है इसको काई बोलते हैं, ये जो नोटेशन है दिस इज फॉर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन कितना टाइटली बाउंड है, ऐसे करके हम इसको समझें। एफिनिटी केमिस्ट्री में 12th में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिफाइन करते हैं, तो द सेम थिंग इज हियर, बट यहाँ पे ऐसे इसको कॉन्सेप्ट की तरह यूज करते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि जब कनेक्शन होता है तो दिस इज फॉर मेटल एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। यहाँ पर हम लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर का डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे मेटल का ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, देन गो फर्दर, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस हियर। ये मेटल है, ये सेमीकंडक्टर है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये फर्मी लेवल एक टाइम के बाद में क्या होगा, जहां भी जब हम किसी का बैंड ज्वाइंट बनाएंगे, कोई भी बैंड बनाएंगे, when you make p-n junction, when you make say metal semiconductor junction, तो फर्मी लेवल दोनों का एक ही लाइन में आना ही आना है। एनीथिंग कैन हैपन बट द फर्मी लेवल विल कम। जैसे यहाँ पे क्या था, ये दोनों अलग अलग थे, तो इसका फर्मी लेवल यहाँ पे था, इसका फर्मी लेवल यहाँ पे था, एंड वी नो दिस इज वर्क फंक्शन, दिस इज वर्क फंक्शन, और इसका वर्क फंक्शन ज्यादा है, इसका वर्क फंक्शन कम है। एज ऑफ नाउ वी नो यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है, यहाँ पे दोनों अलग अलग है। फिर जब दोनों को जोड़ते हैं तो क्या होता है
जब भी हम जोड़ेंगे, चाहे पीएन जंक्शन जोड़े चाहे मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन जोड़े, फर्मी लेवल विल बी अलाइंड। ये अलाइन होगा, बाकी कुछ भी हो जाए। तो जब ये अलाइन होगा तो देखो ये पहले यहाँ पे थे, ये पहले यहाँ पे था, बट टू एडजस्ट दैट दिस बैंड गेट्स बेंडिंग। ये जो है इसका एनर्जी यहाँ पे नीचे आ गया, इसका ऐसे नीचे आ गया, इसको हम लोग बोलते हैं बैंड बेंडिंग। और यहीं से ये जंक्शन पे काफी कुछ होता है, जो बैरियर जनरेट होता है। दिस इज व्हाट यू सी द बैरियर। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये थे, इनकी एनर्जी, अब इलेक्ट्रॉन को अगर इधर जाना है तो देयर इज एन बैरियर, they have to cross this barrier, then only they can go to this side। तो ये बोल रहे कि जब जंक्शन बनता है तो क्या होता है, शॉटकी बैरियर का बात कर रहे हैं। तो फर्मी लेवल अलाइन एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम होगा मतलब जब हम उसको ऐड कर देंगे तो एट सम टाइम फर्मी लेवल विल गेट अलाइन। अगर ये पीएन जंक्शन होता तो वहां पर भी अलाइन हो जाता। तो ये अलाइन हो गया, तो क्रिएशन ऑफ एन कॉन्टेक्ट पोटेंशियल वीओ। वीओ मतलब देखो ये पोटेंशियल, ये क्या हुआ बैंड, क्योंकि ये क्या है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड क्या है, पास ना रहे। तो दिस थिंग हैज टू बी फॉलोड। तो दीज बैंड्स गेट, इनका एनर्जी ऐसे कुछ हो जा रहा है। यहाँ पे यही है जो जंक्शन है, बट इट गेट बेंड्स। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड बैंड बेंडिंग। ये पीएन जंक्शन के केस में भी होता है, और जैसे पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा। तो जैसे हम लोग ऐसे बोले कि ये जैसे मान लो हमने एक पीएन जंक्शन बना रहे होते हैं यहीं पे, जो लास्ट टाइम एक डॉक्यूमेंट शेयर किया था सेमीकंडक्टर का, उसमें ये चीज डिस्कस है, और उसको हम लोग देखेंगे किसी टाइम में भी बैंड बेंडिंग का। लेकिन यहाँ पे हम लोग इसको समझ सकते हैं। जैसे ये मान लो पी टाइप सेमीकंडक्टर है और ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, फर्मी लेवल, इसमें कहीं फर्मी लेवल यहाँ पे होगा बैलेंस बैंड के पास, इसमें कहीं फर्मी लेवल यहाँ पे होगा। जब दोनों अलग अलग है, जब हम दोनों को एक साथ करेंगे, मतलब हम जब एक पीएन जंक्शन ऐसे बनाएंगे, तो हियर वी मेक ए पीएन जंक्शन, तो क्या होगा, जो फर्मी लेवल है, जैसे ये जो फर्मी लेवल यहाँ पे ये नीचे है, ये ऊपर है, लेकिन जब जंक्शन बनेगा इक्विलिब्रियम में तो ये पीएन जो फर्मी लेवल है वो एक डायरेक्शन में आ जाएगा, एंड दीज बैंड्स जो ऊपर बैंड्स हैं ये बेंड हो जाएंगे उसके हिसाब से, क्योंकि ये पीएन जंक्शन के पास रहना चाहिए, ये बैलेंस बैंड के पास रहना चाहिए, और ये कंडक्शन बैंड के पास रहना चाहिए। दिस इज फैक्ट फॉर पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर, बट व्हेन यू मेक इट जंक्शन तो इट विल कम लाइक, ये दोनों एक साथ जब हो जाएंगे तो क्या होगा, ये ऐसे हो जाएगा न्यू, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ऐसे ही हम लोग अगर ड्रॉ करें तो देन वी विल ड्रॉ, दिस इज अ लाइन फॉर फर्मी लेवल। और फिर हम लोग क्या करेंगे, ये बोलेंगे कि ये इसमें ये यहाँ पास में रहना चाहिए, तो दिस विल बी लाइक दिस, और फिर ये ऐसे जाके ऐसे हो जाएगा, और ये ऐसे जाके ऐसे हो जाएगा। तो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, यहाँ पे फर्मी लेवल इसके पास है, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर यहाँ पे फर्मी लेवल इसके पास है, और ये जो ऊपर बैंड स्ट्रक्चर था ये बेंड हो गया, इसको हम लोग बैंड बेंडिंग कहते हैं। ये पीएन जंक्शन में जैसे होता है ऐसे ही यहाँ पे हो रहा है। मेटल के केस में तो यहाँ पे मेटल में तो इधर तो कंडक्शन बैंड बैलेंस बैंड ऐसे है नहीं, ये तो पूरा एक साथ ही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस फिनोमेना यू कैन सी, दिस इज सेमीकंडक्टर, दिस इज एन टाइप सेमीकंडक्टर, सो फर्मी लेवल गेट्स अलाइन फॉर बोथ, और ये जो है ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, एंड दिस जो यहाँ पे जो इसका वैल्यू है, यहाँ पे कुछ वैल्यू है, इसी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यही पोटेंशियल बैरियर इलेक्ट्रॉन को या चार्ज कैरियर्स के मोशन को रोकता है। और इसी बैरियर से हम लोग अभी बात कर रहे थे कि अगर हमको
ये बैरियर को ओवरकम करना है तो क्या करेंगे, कैसे बनाएं। जैसे कि पीएन जंक्शन के केस में हो रहा था, यहाँ पे इधर पीएन जंक्शन नहीं है तो यहाँ पे ये चीज नहीं है। दिस थिंग इज लाइक, अगर हम लोग यहाँ से खत्म कर दें तो इधर का तो पिक्चर देखो तो सेम है। दिस साइड सेमीकंडक्टर जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पीएन जंक्शन के केस में अगर हम देखें तो ये सेम है। मेटल के केस में दिस कम्स दिस। तो we can understand what happens here. तो वही यहाँ पे हम समझ रहे हैं, क्रिएशन ऑफ कॉन्टैक्ट पोटेंशियल VO इज दिस पोटेंशियल, एंड यही एक कॉन्टैक्ट पोटेंशियल जनरेट हो गया, जिसको हम लोग यहाँ पे अगर हम तुम देखो क्यों इसकी बात कर रहे हैं। मेटल सेमीकंडक्टर जोड़ते हैं तो एक पोटेंशियल बैरियर जनरेट हो जाता है जो चार्ज कैरियर्स को रोकता है। वो पोटेंशियल बैरियर अभी जैसे जब दोनों अलग अलग है तो ऐसे था, जैसे ही दोनों एक साथ आते हैं फर्मी लेवल अलाइन हो जाता है, फर्मी लेवल गेट अलाइन एट इक्विलिब्रियम एंड these bend and get bending. This is called band bending. This happens in PN junction as well. Anywhere there is a contact, the Fermi level of both sides will get aligned, and all these other bands will get aligned itself according to that. तो ये इसकी वजह से पोटेंशियल यहाँ पे जनरेट हो गया। यही पोटेंशियल चार्ज कैरियर्स को क्रॉस करने से रोकता है। इस पोटेंशियल को या तो हम इसकी हाइट कम करें या तो इसकी विड्थ कम करें, ऐसा कुछ करके हम इसको ओमिक से शॉटकी में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। फिर बोले कि ये होता क्या है, जो ये पोटेंशियल है ये कहाँ से आता है। तो दिस इज VO इज इक्वल टू phi m minus psi m minus this is phi m minus phi s. Phi m मतलब वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, दिस इज वर्क फंक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर। वर्क फंक्शन को घटाएंगे तो हमको जो पोटेंशियल है वो पता चल जाएगा। तो पोटेंशियल बैरियर फॉर इलेक्ट्रॉन इंजेक्शन, दिस इज इलेक्ट्रॉन इंजेक्शन। एक नया पोटेंशियल बैरियर डिफाइन कर रहे हैं फाई, एंड फाई एम इज phi v is equal to phi m minus chi. Chi means electron affinity, phi m is मेटल का वर्क फंक्शन। ये ऐसे पोटेंशियल बैरियर डिफाइन कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन इंजेक्शन के लिए क्या पोटेंशियल बैरियर है। अगर हम उसको chi मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से घटा दें वर्क फंक्शन को, तो जो रखता है वही पोटेंशियल बैरियर है। उतना अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिल जाए तो इट कैन क्रॉस दिस जंक्शन। दिस बैरियर इज कॉल्ड शॉटकी बैरियर। So I hope you got an idea what is happening at metal semiconductor junction। और इसके साथ हम लोगों ने पीएन जंक्शन के बारे में भी एक तरह से बात किया कि पीएन जंक्शन में क्या होता है, एंड वी यूज दैट कॉन्सेप्ट कि फर्मी लेवल दोनों का कोई भी जंक्शन बनाएंगे, चाहे मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन बनाए चाहे पीएन जंक्शन बनाए, पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर का जंक्शन बनाए, जब वो दोनों जुड़ जाएंगे और इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो फर्मी लेवल दोनों साइड अलाइन हो जाएगा और ऊपर ये जो बैंड्स हैं इनकी बेंडिंग हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड बैंड बेंडिंग, एंड आई कैन इवन शो दैट थिंग आल्सो हियर। एक मिनट में दिखाता हूँ। ये दिस इज पीएन जंक्शन। यू सी वी हैव डिस्कस हियर, यू सी अगेन। ये क्या हुआ, ये पीएन जंक्शन था। देखो ये फर्मी लेवल इसका है, ये फर्मी लेवल इसका है। फर्मी लेवल जब अलाइन हो जाएगा तो ये बैंड का बेंडिंग हो जाता है। You see the Fermi level is close for PN junction, तो ये फर्मी लेवल यहाँ पे कहीं P के पास होगा, यहाँ पे कहीं N के पास होगा। तो ऐसे ये बेंड हो जाते हैं जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसको हम लोग बहुत डिटेल में नहीं जाएं, बट जस्ट ये देखें कि कैसे बैंड बेंडिंग का फेनोमेना होता है। एंड हियर यू सी अगेन दिस इज बैंड बेंडिंग। दैट बैरियर जनरेट मतलब बैंड बेंडिंग की वजह से ही वो बैरियर जनरेट हो जाता है। जैसे एन टाइप सेमीकंडक्टर के केस में हमने बात किया तो ये था, इसमें फर्मी लेवल कहाँ था, कंडक्शन बैंड के पास में था, तो इट वाज देयर। एंड पी टाइप होगा तो कंडक्शन, ये फर्मी लेवल बैलेंस बैंड के पास में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे, वी आर जस्ट अबाउट टू डिस्कस कि जब पी टाइप सेमीकंडक्टर है तो फर्मी लेवल यहाँ पे नीचे होता है।
मेटल के केस में इधर तो एक फर्मी लेवल है और दिस इज सिंपल एंड दिस इज पी टाइप। Phi m is the work function of metal, phi s is the work function of semiconductor. Phi m क्या होता है, जो फर्मी लेवल है उसी के ऊपर एक ऐसे देखें कि उस लेवल से ऊपर के एक एनर्जी का ही डिफरेंस देखते हैं कि इतना एनर्जी दे देंगे तो इलेक्ट्रॉन विल गेट फ्री, इलेक्ट्रॉन विल गेट आउट ऑफ इट। तो ऐसे हम लोग वर्क फंक्शन डिफाइन करते थे। तो इस केस में क्या हुआ, पाई एम इज लेस देन पाई एस। ये पाई एम का इतना वैल्यू है एंड पाई एस इज दिस वैल्यू। तो इफ यू सी गो बैक ऑन दिस, यहाँ के सिचुएशन में क्या था, पाई एम इज ग्रेटर देन पाई एस, पाई एम पाई एस से बड़ा था, मतलब मेटल का वर्क फंक्शन वाज ग्रेटर। और जब पी टाइप सेमीकंडक्टर यूज कर रहे हैं तो पाई एम इज लेस देन पाई। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए वही वैल्यू यूज किया जा रहा है। फिर देखो अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या था कि अभी जंक्शन बना नहीं है, ये जंक्शन बन गया तो क्या हो रहा है, फर्मी लेवल अलाइन होगा। जैसे ही इक्विलिब्रियम में फर्मी लेवल विल गेट अलाइन टू दिस, तो क्या होगा, ये since it is p type semiconductor, its Fermi level has to be close to valence band. So because of that, these bands will get bending like this. पहले क्या हुआ था, बेंडिंग ऐसे हुआ था, अभी बेंडिंग ऐसे हुआ, this becomes like this, this goes like this. तो अब एक दूसरा पोटेंशियल जनरेट हो रहा है यहाँ पे। पहले क्या था कि इलेक्ट्रॉन से पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होते हैं, वहां पे क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स थे। तो इफ यू जस्ट लुक बैक दिस थिंग, यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग बोल रहे हैं कंडक्शन बैंड से इलेक्ट्रॉन is not able to go to this side because of this potential barrier. Because of this barrier, these electrons are not able to cross to go this side in case of n-type semiconductor. What is happening in p-type semiconductor? This potential barrier comes here. The holes cannot cross this junction. मतलब जो holes है, they get trapped. They feel this potential barrier. Holes क्या होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। तो जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें कंडक्शन के लिए होल्स आर रिस्पॉन्सिबल एंड होल्स आर इन बैलेंस बैंड। तो बैलेंस बैंड का एनर्जी देखो क्या हुआ, पहले यहाँ पे था कहीं, ये बेंडिंग होकर ऊपर पहुंच गया। देयर इज एन पोटेंशियल, this much potential barrier is generated and this potential barrier is creating stopping holes to cross the junction. Okay, so here again this is potential, so this is phi s minus phi m. यहाँ पे potential क्या था, if you remember this phi m minus phi s, तो दोनों सिंपल है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस उसको हम ये समझ लें कि इलेक्ट्रॉन्स है वहां पे बेंडिंग ऐसे हो रहा है, this bending becomes like this, और यहाँ पे बेंडिंग कैसे हो रहा है, यहाँ पे बेंडिंग में बैंड्स आर गोज लाइक दिस। जब हम लोग दिस इज फॉर एन टाइप एंड दिस इज फॉर पी टाइप, यहाँ पे बैरियर जनरेट हो गया, ये होल्स को प्रॉब्लम कर रहा है, वहां पे इलेक्ट्रॉन के लिए वो बैरियर जनरेट हो गया था। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर्स होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, पी टाइप में होल्स होते हैं। तो ये हम लोगों ने समझ लिया ये पोटेंशियल बैरियर दोनों में कैसे जनरेट होता है। और फिर बोल रहे कि पावर बायसिंग अगर हम करते हैं, अगर इसी में बायसिंग करेंगे तो बैरियर को ओवरकम मिलेगा। सो द पावर बायसिंग VO इज इक्वल टू VO माइनस V। V मतलब हम लोग जो बैटरी दे रहे हैं, या ऐसे बोले इलेक्ट्रॉन बिकम्स इजियर, इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन उससे, इसमें हम पावर बायसिंग करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो बैरियर जनरेट हुआ है उस बैरियर को ओवरकम करेगा, इट विल गिव एनर्जी इलेक्ट्रॉन टू ओवरकम द बैरियर। तो इस वजह से क्या हुआ, ये भी एक फॉरवर्ड बायसिंग जब करते हैं तो ये फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन की तरह ही बिहेव कर रहा है, वो बैरियर को कम कर दे रहा है। जैसे पीएन जंक्शन में हम लोग फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस सीखा था, तो वही रिवर्स बायस फॉरवर्ड बायस में यहाँ पर भी वही इफेक्ट हमको दिख रहा है। अगर हम फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं तो जो पोटेंशियल बैरियर जनरेट हो जा रहा है वो ओवरकम किया जा सकता है, अगर हम रिवर्स बायसिंग कर देते हैं तो वो प्रॉब्लम कर दे रहा है। तो रिवर्स बायसिंग डजंट हेल्प, रिवर्स बायसिंग इन शॉर्ट की रिवर्स बायसिंग करेंगे तो और भी वो जो है उसको प्रॉब्लम कर देगा।
electron flow from semiconductor to metal becomes negligible. Here it will be having like reverse bias p-n junction diode. So it's all about, यही हम लोगों ने बात भी किया शुरू में. बहुत ज्यादा मत सोचना है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें हो सकता है कि समझने में थोड़ा सा इशू हो, बट पीएन जंक्शन जैसे हमने समझा है ऐसे ही इसको एक स्टोरी की तरह समझेंगे तो यू विल बेटर अंडरस्टैंड. तो हमने एक तो ये समझा कि ये जैसे देखे, जैसे कि उसका पीएन जंक्शन का हमने देखा था, ऐसे ही ये डायोड इक्वेशन शॉटकी डायोड के लिए, शॉटकी डायोड मतलब मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन से जो डायोड बनाया जाता है, तो वहां पे ये भी पीएन जंक्शन की तरह है. दिस इक्वेशन वी आर नॉट मच वरीड, वी जस्ट लुक एट दिस पिक्चर. क्या हो रहा है, वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ देख रहे हैं, तो इट शोज लाइक दिस. अब दूसरे साइड में एकदम नहीं है, पावर बायस में करते हैं तो कुछ ऐसे भी दिखता है. बट so you can see this is not an ओम्स लॉ ये फॉलो नहीं कर रहा है. वोल्टेज और करंट के बीच का जो रिलेशन है ये ओम्स लॉ फॉलो नहीं कर रहा है. तो और ये पीएन जंक्शन की तरह ही है. पीएन जंक्शन का जो हम लोग देखा था, तो ब्रेक डाउन जब हो जाता है तब वो ऐसे ब्रेक हो जाता है, बट अदरवाइज रिवर्स बायस में एकदम कम करंट होता है, फॉरवर्ड बायस में करंट दिखता है जैसे जैसे वोल्टेज हम बढ़ाते हैं. सो दिस इज हाउ यू सी पीएन जंक्शन. ओमिक कॉन्टेक्ट क्या होते हैं? ओमिक कॉन्टेक्ट तभी होगा जब करंट और वोल्टेज दोनों प्रोपोर्शनल हो. VI कैरेक्टर मस्ट बी लीनियर इन बोथ डायरेक्शन. मतलब अगर ये अभी ऐसे है, अगर हम बोले कि ओमिक होने के लिए क्या होना चाहिए था, दिस शुड हैव बीन अ लाइन लाइक दिस. इधर भी लाइन होता है, ये स्ट्रेट लाइन में नहीं खींच पाया हूं. लेट मी यूज दिस ड्राइंग टू इंटरसेट. सो यू सी इट शुड बी लाइक दिस. ऐसे होना चाहिए था हमको अगर ये ओमिक कॉन्टेक्ट, बट ये नहीं है. तो दिस इज शॉटकी बैरियर. It is called rectifying contact or Schottky. You can say it is Schottky contact, whatever you can call it. Schottky, you know it is Schottky. अगर ये ओमिक होता तो ये लाइन ऐसे होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है. तो Schottky को ओमिक में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों ने दो मेथड सीखे थे. क्या करेंगे कि जो बैरियर है उसको कम कर दें, बैरियर हाइट को कम कर दें या बैरियर को पतला कर दें. तो हाइट को कम करने के लिए हमको कुछ ऐसे मटेरियल यूज करने चाहिए जिनका बैरियर हाइट कम होता है. तो ये मटेरियल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है. और विड्थ कम करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, हमने इसको बताया है अभी. आई विल जस्ट समराइज. तो ये ऐसे होना चाहिए. प्रॉपर IC contains 1000 PN junctions which must be connected and interconnected over per user device. ये बोल रहे हैं कि हमको कई बार जो ये मेटल सेमीकंडक्टर कॉन्टेक्ट है, इसमें हमको ओमिक कॉन्टेक्ट ही चाहिए होता है, क्योंकि हम क्या कर रहे होते हैं कि बहुत सारे डायोड से उनको जोड़ रहे होते हैं सर्किट में. कई सारे डायोड अलग अलग तरह से जोड़ रहे हैं. अगर हर जगह एक नया डायोड बना देगा ये मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन की वजह से, तो प्रॉब्लम हो जाएगा. इसलिए हमको ओमिक कॉन्टेक्ट चाहिए होते हैं. लेकिन हम लोगों ने शॉटकी कॉन्टेक्ट समझा कि ये होता है और इसको कैसे कम करना है ये समझा. तो अगर हम लोग अभी 2-3 मिनट में मैं पूरा बताना चाहूँ कि हमने क्या क्या समझा, कैसे रिवीजन किया. तो मेटल सेमीकंडक्टर, अभी तक पहले हम लोगों ने पीएन जंक्शन सीखा था, हमने मेटल सेमीकंडक्टर का बात किया. वी स्टार्टेड विद मेटल एंड सेमीकंडक्टर, जो हम जानते थे उसके बारे में बात किए. फिर हम लोगों ने बोला कि जब हम एक बैरियर बनाते हैं तो एक पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, और वो पोटेंशियल की वजह से ये एक साइड में एक बायसिंग में अलग बिहेव करता है, सेकंड बायसिंग में अलग बिहेव करता है, और उसकी वजह से ये ओमिक कॉन्टेक्ट नहीं रह जाता है, एक रेक्टिफाइंग कॉन्टेक्ट हो जाता है, क्योंकि इट इज नॉट बिहेविंग सेम इन द बोथ टाइप ऑफ बायसिंग. पोलैरिटी चेंज कर देते हैं तो उसका इफेक्ट चेंज हो जाता है. ऐसा होना नहीं चाहिए. तो उसको हम लोगों ने ये दो मेथड सजेस्ट किया कि क्या करें कि जो बैरियर हाइट है उसको कम कर दें. कैसे कम कर दें? हम ऐसे मटेरियल यूज करें जिनका बैरियर हाइट कम होता है. दूसरा क्या करें कि नैरो बनाए. नैरो कैसे कर सकते हैं? अगर हैवी डोपिंग करेंगे तो वो नैरो हो जाएगा. तो देयर आर 2 मेथड्स टू कन्वर्ट शॉटकी कॉन्टेक्ट इनटू ओमिक कॉन्टेक्ट. फिर दोनों को हम लोगों ने समझा कैसे ये कॉन्टेक्ट बन जा रहा है, कैसे ये बैरियर जनरेट हो जा रहा है, उसको हमने समझा. These are the contacts
एंड हियर यू सी देयर इज नो जंक्शन, जंक्शन जब नहीं है तो ये हमने मेटल की प्रॉपर्टीज को देखा, ये सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज को देखा। फिर हम बोल रहे हैं कि जब दो इक्विलिब्रियम आएगा तो फर्मी लेवल अलाइन हो जाएगा। ये पी एन जंक्शन के केस में भी होता है, मेटल सेमीकंडक्टर के जंक्शन के केस में भी होता है। तो ये bands get bending because for n-type semiconductor Fermi level has to be close to conduction band, and that this is called band bending. Band bending के होने की वजह से एक barrier generate हो गया. That barrier is not allowing electron to cross the junction, and this is in case of n-type semiconductor, and in p-type semiconductor bending इस तरह से होता है। तो यहाँ पे जो holes है वो hole के लिए एक barrier generate हो गया। This hole are not allowed to cross the junction and participate in the process of conduction. तो ये चाहे p टाइप हो चाहे n टाइप हो, दोनों में इस तरह का बैरियर जनरेट हो जा रहा है। बैरियर के लिए अगर हम बायसिंग करते हैं तो एक बायसिंग करते हैं तो उसमें वो बैरियर कम हो जाता है, दूसरा बायसिंग करते हैं तो बैरियर ज्यादा हो जाता है। इस वजह से ये ऐसा हमको वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन मिलता है जो कि ओमिक नहीं है, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। ये एक रेक्टिफाइंग कॉन्टेक्ट है, बट हमको चाहिए कि ये ओमिक हो, इसलिए हम लोग ने दो मेथड सजेस्ट किए कैसे हम शॉर्टकी कॉन्टेक्ट को ओमिक कॉन्टेक्ट में चेंज कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी लर्न टुडे दिस पार्ट, मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन क्या होता है और ओमिक और शॉर्टकी क्या होता है, इसको हमने समझा। और ज्यादा बात हम लोग बीच में डिस्कशन टाइप में नहीं करता है क्योंकि एक थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है और कई सारी चीजें हमको समझानी थी। Now 10, and I hope you have got the concept of the junction. Then band bending, semiconductor metal junction क्या होते हैं, ओमिक और शॉर्टकी क्या है, दोनों इन चीजों के बारे में आप लोग को थोड़ा ठीक से समझ में आया होगा। And then we will discuss it in further classes. So hopefully we will meet on next day for further discussion.